as a student in your university? Were you the topper? मेरी बैक आती आती बची थी 2-3 कि सबको एक बार सीरियस तो होना पड़ता लाइफ में। अगर आप Adobe की CEO बन गए तो इजीली 16 क्रॉस कर जाता है। जो CTC था वो मेरा 20 प्लस कर चुका है। सो दैट्स बेसिकली आपको नेगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए। क्या टाइप के क्वेश्चंस आए थे so that it can be helpful? एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज कि हमारा एक एरे है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल टेकी कनी। और आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो वेयर इन यू कैन गेट अ चांस टू मीट वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो कि अभी टॉप कंपनी में प्लेस्ड हैं। सो लेट्स मीट तने। सो हाय तने, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Hello guys, I am Tana Agrawal. I live in Jaipur, the Pink City. I'm a 2021 graduate, fresher only. Graduated from Thapar Institute of Engineering and Technology. And my CG was 8.96. Currently, I'm working in Adobe as a software engineer. ओके, सो दैट्स ग्रेट। तो आप थापर इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं एंड यू वर्किंग इन अडोबी, सच अ मोटिवेशन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। सो हाउ डिड यू थिंक दैट दिस वॉज अ मोटिवेशन फॉर यू ऑल्सो कि आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और यू कैन से एक टियर 2 और टियर 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ के यू आर प्लेस्ड एट सच अ गुड कंपनी। सो हाउ डिड यू फील? It feels wonderful. I feel wonderful basically. बहुत अंदर से खुशी होती है, you know. My parents are proud of me. My friends and family are basically they all thinks that I'm a genius and also it you know it is good. चलो, आई थिंक 2021 बहुत अच्छा साल रहा आपके लिए। सो व्हाट डिड यू से, लाइक व्हाट, अगर आपको डिस्क्राइब करना हो व्हाट इज़ अडोबी, हाउ, मतलब कैसे आपको जानने को मिला, व्हाट इज़ एग्जैक्टली अडोबी? इफ़ हमारे दर्शकों को नहीं पता तो प्लीज़ कैन यू टेल? सो बेसिकली अडोबी इट्स अ MNC, एक IT कंपनी है जो कि PDFs पे काम करती है। सो इट्स बेसिकली PDF रीडर्स जो हम देखते हैं, अडोबी एक्रोबैट एंड ऑल। सो बेसिकली दे आर द PDF रीडर्स विच आर मेड बाय अडोबी। उस पर हम PDF को एडिट कर सकते हैं, PDF व्यू कर सकते हैं एंड not only PDF but Adobe also works with a Photoshop and all where you can edit your photos and videos and all. So yeah, it's a product based company and we are making these kind of products. And actually we are using all these products like Photoshop edit करने के लिए, videos edit करने के लिए, they have the Premiere Pro, the Final Cut and everything. So yeah, good. So tell us, like, how was your process? How did you get into this company, your dream company you can say? कैसा रहा आपका प्रोसेस? वॉज इट ईजी, वॉज इट डिफिकल्ट? हमारे जो फ्रेशर्स जो अभी ग्रेजुएट होने वाले 2022 में और 2023 में, सो हाउ वुड यू से दैट प्रोसेस? हाउ वॉज योर प्रोसेस? Basically process was extremely smooth, but the thing is you have to contact a recruiter or basically you have to get a referral, otherwise you won't get a chance to get in Adobe because you know these companies are very big, you know. So they can't look each and every application which they receive on their career site. So it would be great if you can get a referral, or if you are not getting a referral like me, like I haven't got any referrals. So I contacted a recruiter through LinkedIn only. I messaged a lot of recruiters and one of them luckily messaged me back, and then I shared my CV and all. Then she basically processed my CV, and if you get shortlisted then they will send you a test link, and so this is the whole thing to test link. After the test link, basically we get the interview round if you clear that test, of course. So Adobe takes around 5 interview rounds, and all the interview rounds are based on DSLGO operating system and networks basically. So in the first round they basically check कि आपको DSLGO का बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, आपको UPS का बेसिक नॉलेज है कि नहीं है. So they will give you some simple questions only, but जो ऐसे जैसे हम राउंड्स में आगे बढ़ते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड में क्वेश्चंस के जो लेवल है वो हार्ड होते रहते हैं. और जो फिफ्थ राउंड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है बिकॉज दैट्स अ मैनेजर राउंड, हायरिंग मैनेजर राउंड. सो उसमें जो हमारा मैनेजर होने वाला होता है, इफ वी गेट सिलेक्टेड इन द अडोबी, सो हमारा जो मैनेजर होता है वो हमसे क्वेश्चंस करता है, एंड वो जो क्वेश्चंस करते हैं वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं. ये बेसिकली टेक राउंड नहीं होता, ये टेक प्लस HR राउंड होता है. लाइक उसी इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, लाइक सपोज अगर हम आपको अडोबी का CEO बना दे देन व्हाट विल यू डू. सो हमको ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है उस राउंड में. सो जो फिफ्थ राउंड होता है वो सबसे ट्रिकी होता है. बाकी की जो फर्स्ट 4 राउंड है दे आर ओनली DSLGO बेस्ड. अगर आपका DSLGO अच्छा है देन यू विल श्योरली गेट इट. अच्छा, सो आई थिंक यू आर ऑल राउंड स्कॉट रियली वेल, तो आप सिलेक्ट हो गए. वैसे एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट इन योर यूनिवर्सिटी?
were you the topper or No, I was not a topper or something like that. मेरी बैक आती बची थी 2-3 सब्जेक्ट्स में, so ऐसा नहीं है कि मैं टॉपर था या ऑल, बट या जब प्लेसमेंट सीजन आते हैं, so आई गेस हर IT स्टूडेंट मोटिवेट हो जाता है उस टाइम पे, अपने फ्रेंड्स को देखता है कि वो अच्छी कंपनी में प्लेस हो रहे हैं, तो वो भी थोड़ी मेहनत करता है। सो दैट्स द रीज़न कि सबको एक बार सीरियस तो होना पड़ता लाइफ में, एंड अगर आप सीरियस नहीं हुए लाइफ में तो फिर आप अचीव नहीं कर पाओगे कुछ, तो आई गेस दिस इज रियली गुड। एंड या आपकी स्टोरी सुन के लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट मोटिवेटेड। तो हाउ मेनी राउंड्स ऑफ असेसमेंट वर देयर, इफ यू हैड अ ब्रीफ थोड़ा सा बता दो, लाइक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स जो अभी लाइक उनको पता नहीं होता हाउ टू प्रिपेयर एंड कितने राउंड्स ऑफ असेसमेंट होते हैं, एंड हर राउंड में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ DS दैट इज आस्क्ड, एंड व्हाट इज द लाइक एल्गोरिथम्स, एंड व्हाट एल्स इज आस्क्ड, कितने राउंड्स होते हैं एंड व्हाट इज आस्क्ड इन दीज राउंड्स। shortlisting, then we get the test link. Test link में basically they gave us 2 DSL questions. I got 2 DSL questions. दोनों questions like medium lead code questions थे, and you will get 1 hour to finish that question, finish them. So what was the level की जैसे अगर किसी ने स्टार्टिंग में लाइक DS करी है and they are at the beginner level, तो can they solve these questions? If you are a beginner at DSL Go, then I don't think you can tackle the questions because the questions were really tricky. You need to have some practice over DSL Go, especially दोनों questions होते हैं वो array पे थे, so Adobe को array topic जो है वो बहुत पसंद है, so can you just give us an example if you remember, अगर आपको अभी तक याद है कि आपके assessment में क्या टाइप के questions आए थे, so that it can be helpful. I still remember. पहला question बहुत common question था, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था, विच इज लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। सो हमें एक 2 स्ट्रिंग दी है एंड उसमें से हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस जो है वो बताना था। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज कि हमारा एक एरे है, हमको एरे में जो हमको एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे एरे में, उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो भी एरे में प्रेजेंट है हमें वो बताना है, बट वो जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो एट द राइट साइड ऑफ द एलिमेंट होना चाहिए, लेफ्ट साइड नहीं होना चाहिए। So that was another question. Okay, ठीक है. No aptitude, only coding. Okay, so round 1 was CV shortlisting. Round 2 was a DS test in which there were 2 coding questions you have to solve, and those were not easy. They were little tricky. ठीक है. Moving on further round. Okay, so if you clear the test, then आपको HR call करेगी and she will schedule your first interview round. So पहला interview is बहुत बेसिक सा इंटरव्यू होता है, इसमें हमको ऊप्स के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो पूछे जाते हैं कि लाइक व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, 4 पिलर ऑफ ऊप्स वगैरह बता दो। आप टेक्नोलॉजी पे जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर चुके हो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में, अपनी इंटर्नशिप पे, तो वो बता दीजिए। एंड देन दे आस्क 1 सिंपल DSL को क्वेश्चन जस्ट टू चेक कि आपका जो कोड है वो नीट एंड क्लीन, आपको कोड लिख के दिखाना पड़ेगा इस राउंड में। सो लाइक जस्ट टू चेक कि आपका कोडिंग स्किल जो है वो नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, अगर आप वेरिएबल्स अच्छे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो वो उस चीज़ पे हमको रिव्यू करते हैं फर्स्ट राउंड। जो एक्चुअली पहला इंटरव्यू होता है वो जो आपकी टीम में कलीग्स होते हैं, जो लेट्स से जो कलीग्स होते हैं SG1 और लाइक जो सिंपल जो आपकी पोजीशंस पे होते हैं वो लेते हैं, बट जो नेक्स्ट इंटरव्यू होते हैं वो हमारे टीम लीड्स लेते हैं। सो एक अडोब की टीम में बेसिकली 3 से 4 टीम लीड्स होते हैं अंडर 1 मैनेजर। सो वो सारे टीम लीड्स आपका आगे के इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। सो जो सेकंड राउंड और जो आगे के राउंड होते हैं वो थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। जैसे सेकंड राउंड्स में दे आस्क सम डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस और सम ट्रीज क्वेश्चन कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करो। अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल जैसे रिकर्जन से करना बहुत ईजी है, बट इफ यू डू इट इन द आइटरेटिव वे देन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सो वो बोलते हैं कि जैसे कि आपने प्री ऑर्डर रिकर्जन से किया है देन आप आइटरेटिव वे में करो। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो DSL का जो लेवल है वो हाई होता रहता है। प्लस इस वाले राउंड में हमसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछा जाता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछा जाता है क्योंकि अडोब के जो सॉफ्टवेयर है हमें उन्हें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, राइट। अब अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी मेमोरी के बारे में तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। सो दैट्स द Adobe is their dream company and they are from a tier 2 or tier 3 college. Let's suppose किसी ने M.Tech करी या MBA pursue करी from a tier 2 tier 3 college या फिर bachelor's करी from a tier 2/tier 3 college. So उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है if you know कि लाइक LinkedIn के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं एंड हाउ डिड मतलब क्या उनके लिए ये राउंड्स ऑफ असेसमेंट सेम रहते हैं या हर एक प्रोफाइल के लिए अलग रहते हैं?
कॉलेज का जो टीयर है वो मैटर करता है इंटरव्यू प्रोसेस में. सो इफ यू आर फ्रॉम टीयर 1 कॉलेज लाइक आप IIT या NIT से हैं, देन ऑफ कोर्स Adobe will visit your campus, so it will be on campus hiring, and we all know on campus hiring is much easier than the off campus hiring. Yeah, you have less competitions, but if you are from tier 2 to tier 3 college, then yeah, of course आपको ऑफ कैंपस ही लड़ना पड़ेगा. Adobe आपके कैंपस में ऐसा पॉसिबल है, बट चांसेस कम होते हैं. ऑल्सो अगर वो आते भी हैं तो वो लाइक मैक्सिमम 5 to 6 स्टूडेंट्स ही पिक करेंगे मेरे हिसाब से. सो अगर आप टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में हैं, देन ऑफ कोर्स आपको थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा, आपको अपना रिज्यूमे अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स पॉलिश करनी पड़ेगी, एंड देन आपको ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना पड़ेगा. ओके. सो मतलब आपके अकॉर्डिंग तो अगर कोई बात नहीं, टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में किसी का एडमिशन हो गया, सो यू नीड नॉट वरी. आप थोड़ी सी मेहनत करिए, रिज्यूमे अपना अच्छा बनाइए, एंड अपने लिंक्डइन पर यू कैन गेट अ लॉट ऑफ नेटवर्क थ्रू देयर, एंड यू कैन ऑल्सो गेट गुड कनेक्शंस फ्रॉम देयर. उससे पहले आपको अपने रिज्यूमे अच्छा बनाना पड़ेगा. उसके लिए यू हैव टू गेट गुड इंटर्नशिप्स, गुड प्रोजेक्ट्स. हाँ, एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक इट. क्योंकि यार अगर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर तने कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, राइट? अच्छा, ओके. सो एवरीथिंग इज डन. मेहनत कर ली, मोटिवेट हो गए, कंपनी में चले गए, यू हैव वर्कड ऑन योर स्किल सेट, बट द मेन पॉइंट इज CTC. अब मेहनत करने के बाद व्हाट इज द CTC दैट यू विल बी ऑफर्ड? क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि फ्रेशर्स के लिए क्या CTC रहता है? यस, जो Adobe का CTC होता है फॉर फ्रेशर्स, वो इजीली 16 क्रॉस कर जाता है. एंड अगर आपके पास 16 क्रॉस इजीली कर जाता है, बट या अगर आपके पास काउंटर ऑफर्स हैं, जैसे कि मेरे पास एक्चुअली मैं 3 to 4 और कंपनीज में प्लेस था, तो मेरे पास काउंटर ऑफर्स थे. सो उनसे मैंने नेगोशिएट किया. जनरली जो कंपनीज होती हैं उनका 80-20 का रेशियो होता है. लाइक 80% वो इन हैंड देते हैं, 20% जो होता है वो स्टॉक्स या फिर कुछ बेनिफिट्स वगैरह में चल जाता है. बट Adobe में थोड़ा डिफरेंट है. Adobe में यू विल गेट 60% इन हैंड, एंड बाकी का जो है वो स्टॉक्स में रहता है. बट यस, ज्वाइनिंग बोनस प्रोवाइड होता है. ज्वाइनिंग बोनस आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 3 lakhs. ओके, सो 20+ बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज इट्स अ ड्रीम फॉर ऑल. मैंने ये पूछा कि जो ड्रीम कंपनी होती है वो सिर्फ ड्रीम दिखने में है या सही में एग्जैक्टली है? व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्कलोड, द प्रेशर दैट द एम्प्लॉयज ऑफ दिस बिग कंपनीज फेस, वो ज़रा बताइए एक्चुअली. ओके, सो वर्क लाइफ बैलेंस Adobe का काफ़ी बेटर है. एंड सो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, राउंड्स ऑफ असेसमेंट, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड. नाउ अगर आपको फ्रेशर्स हैं तो आप उनको क्या एक टिप देना चाहेंगे? टिप तो यही है कि अपने रिज्यूमे में हमें काम करना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कोडिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. आप अगर दिन के 1 या 2 क्वेश्चन लीड कोड से करेंगे, देन इट वुड बी रियली हेल्पफुल. लीड कोड या फिर Geeks for Geeks पे यू कैन सी लाइक देयर आर सेक्शंस कॉल्ड टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, जहाँ पे इंटरव्यूअर्स ने अपने क्वेश्चंस जो कि जनरली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में बड़ी कंपनीज के लाइक Amazon, Microsoft, Adobe एंड ऑल. सो उनकी कंपनी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पोस्ट कर रखे हैं. सो इट वुड बी बेटर अगर आप उनसे गो थ्रू कर ले इंटरव्यू से पहले. ऑल्सो जो ऊप्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, SQL क्वेरीज है, इन पे हमें हाथ बैठा के रखना है. इन्हें हमें छोड़ना नहीं है. कोडिंग नहीं करनी है हमें. ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में इन चीज़ों पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सो इट वुड बी बेटर अगर हम कोडिंग के साथ साथ SQL और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छे से करें. अगर आपके पास टाइम मिले, देन इट वुड बी गुड अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स भी कर ले. तो द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड SQL ये तो सिर्फ सफिशिएंट होगा अगर आपने कॉलेज नोट्स ही पढ़ लोगे तो, क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ा था. यूट्यूब पे काफ़ी सीरीज होती हैं SQL और ऑपरेटिंग सिस्टम की. सो मैंने भी वहीं से देखा था, वहाँ से मैंने नोट्स बनाए थे. मैंने अपने जो कॉलेज नोट्स से उनसे भी थोड़ा पढ़ा था. जब हम क्लास जाते थे हम नोट्स बना लेते थे, और फिर हमने वहाँ से थोड़ा सीखा, एंड देन इट वाज. सो अच्छा, चलो लेट्स मूव फर्दर. तो अगर आप इफ़ यू नो एनीथिंग कि कोई अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोई Adobe में, कोई इंटर्नशिप या कोई फुल टाइम, इफ़ यू नो कि कोई हैकाथॉन्स होती हैं या फिर एनी अदर थिंग, इफ़ यू नो यू कैन टेल टू आवर व्यूअर्स. Adobe में एक्चुअली ओपन पोजीशंस अभी चल रही हैं. Adobe इज हायरिंग इन मास राइट नाउ. इंटर्नशिप्स के लिए भी वो काफ़ी हायर कर रहे हैं अभी. फ्रेशर्स को भी हायर कर रही है, एक्सपीरियंस को भी हायर कर रही है. यू कैन विजिट द Adobe करियर वेबसाइट, एंड वहाँ पे आप ओपन रूल जो है वो सारे सर्च कर सकते हैं. आई थिंक दिस वॉज एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन. बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके तने. इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू एंड नाइस इंटरेक्टिंग विद यू. एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुके होंगे. वेयर टू गो, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, किस डायरेक्शन में राउंड्स ऑफ असेसमेंट के लिए मेहनत करनी है, किस डायरेक्शन में इंटरव्यू के लिए मेहनत करनी है.
what is your last message to our viewers? आई फील वंडरफुल, काफ़ी मज़ा आ रहा है अडोबी जैसी कंपनी में काम करके. अडोबी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है. एंड जो मैसेज मैं व्यूअर्स को देना चाहूँगा वो ये है कि डोंट लूज होप. रिजेक्शंस सबको आती है, रिजेक्शंस मुझे भी आई है, बहुत सारी कंपनी से मुझे रिजेक्शन आई है, बट टेक देम एज अ पार्ट ऑफ ए प्रिपरेशन. रिजेक्शन से लर्न कीजिए. आपने जो क्वेश्चन हमें मिस किया उसको प्रिपेयर कीजिए कि आपने कहाँ पे गलती करी, जिस टॉपिक पे आप अटके उस टॉपिक को और प्रिपेयर कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, वीक पॉइंट मत छोड़िए कोई भी, एंड देन of course definitely you will get into good MNC. So let us end this video and do check out the description box and connect with Tanay on LinkedIn, and do like this video and comment on this video कि आपका favorite part कौन सा था इस वीडियो में, and also comment करके बताओ कि हम next video किस topic पर बनाएं, and also if you want to see Tanay on our channel again with some other video तो वो भी comment करके बताओ. एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस, क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स हो तो वो भी कमेंट करके बताओ. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ यू. ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करी है कनिका ने, एंड मैंने भी. सो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड प्लीज़ अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें. कनिका विल आंसर देम. एंड या अगर कुछ अडोबी से रिलेटेड या फिर कुछ टेक रिलेटेड डाउट होता है देन यू कैन मैसेज मी ऑन लिंक्डइन. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. So thank you so much. So let's end this video.